mean, in a day, how many hours do you use to study? एक लेवल होता है और मेंस में जाके एकदम बढ़िया लेवल आ जाता है। जी जी। तो उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपकी कोई स्ट्रैटेजी होती थी कि मॉक में इस तरह से प्रिपेयर करना है, पर डे कितने मॉक्स लगाते थे? बेसिकली किस तरह से प्रिपरेशन करी आपने मेंस की? ओके, तो आपने बोला एनालिसिस करो। बेसिकली एनालिसिस करी कैसे जाती है? बहुत सारे बच्चों को होता है कि मैम मॉक देने में तो टाइम लगता नहीं है और जी एनालिसिस करने में ना बहुत टाइम लग जाता है, प्लस उसमें थोड़ा सा आलस भी आता है, तो मन नहीं जी। करता करने का। Focus on the process. The outcome will introduce you. Hello everyone, welcome back to Guidely. I'm Vanchika and this is episode 4 of the Topless Talk. और आज हम लोग बात करेंगे ना तो क्लर्क के बारे में ना ही पीओ के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पोस्ट के बारे में जो कि रिसेंटली अंडर ग्रेजुएट्स के लिए ओपन हुई है और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरह की लाइफ होती है क्रेडिट ऑफिसर की, और साथ ही में जानेंगे क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इस जर्नी में एक्चुअली सक्सेसफुल होने के लिए आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो इसके लिए इसके बारे में सिर्फ मैं अकेली बात नहीं करूंगी, हमने इनवाइट किया हुआ अपने टॉपर को। सो लेट मी इनवाइट मिस्टर शिवम हु इज करेंटली वर्किंग एज अ क्रेडिट ऑफिसर एंड in Central Bank of India. Hello, ma'am. Welcome to Gayatri Shivam. How are you Thank feeling you. right now? I'm feeling really good that I got that opportunity to got interviewed by the guided team. That's really great. Thank you too. Okay. Okay, so let's start from the very basic. Can you tell us your journey? Yes, ma'am. Actually, it started like after I completed my engineering in 2023. So at Okay. that time, I also got a placement, but it was in Pune, and at the same time, my mother got like paralyzed. She got Oh, paralyzed. okay. So this is one of the reasons that I'm not been able to join that. So after that, I started exploring other options. Then I find banking to be more reliable as the process. This is Hmm. very transparent and also there are many exams. Other than that, like not in SSC, like we have to wait for so much time for Hmm. the results and all. The process is very fast. So then I started my journey in April 2024 Okay. with the proper. And then in 2 months, I have completed my pre-syllabus, like practice and all the things. And side by side, I'm also preparing for my mains as well. Okay. Not properly preparing, but like go through from basic questions and all these things. So then after I have cleared IBPS PO pre, IBPS clerk pre, RRB Okay. PO pre, and I have also cleared like my RRB PO means exam. I got zero point 0.3 less marks than the cutoff marks. Oh, that must have been a tough patch for you. More tougher is like my IBPS PO means exam. I have cleared the means exam from about 11 marks, Oh, and still I'm not been able to clear the final cutoff because in the interview I got not that much marks. okay. So, like, you have already cleared your mains exam in IBPSPO, right? Yes, ma'am. So if we ask from the basic point of view, so like many of the aspirants, they are not able to attempt really like good attempts in the prelims exam. Yes, Can you ma'am. suggest something for them so that they can improve? So because you have prepared only for 2 months for the prelims Yeah. exam, and how did you improve your marks so Like that my you first, cleared all the prelims? okay. Like first, I have focused on my base that Okay. all the things, and after that, I am able to solve all the prelims questions, which may be of IBPS clerk level or of SBI PO level. Then after Mm-hmm. started working on my timing, that how much time I'm taking, and I also used to analysis of the mock that I have given, like how much Okay. time the topper is taking and from how much time I am lagging from it. So with all this, I am able to like I in my pre-examination I got 27 or 28 more marks than the cutoff marks.
Wow, And that's great. yeah, Okay, so like how many mocks do you used to do, like give in a day? in a day, mains I only used to give one mock, and for Okay, pre-examinations, two mocks. Other than that, sectional mocks I used to give. There so is how many no hours? hours if I say 4 hours. No, I mean in a day, how many hours do you used to study? 30, 8 to 10 hours, not more Eight to than that. ten hours per day, Yeah, and you because I have were that habit of studying because of my like the maths background. okay. So you used to study 10 to 12 hours per day, and how for how many months have you studied in this way? Like, ma'am, in April I started, and 11 months. So you have studied for 10 to 12 hours for 11 months continuously. Yes, ma'am. तो बेसिकली ऐसा होता है ना कि बहुत सारे मतलब बैंकर से बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं 6-4 घंटे में हो जाता है 10-12 घंटे बट जी, आप बोल रहे हो 10-12 घंटे बट आपको काफी जल्दी एग्जाम क्लियर हो गया नहीं 8 से 10 घंटे। हाँ जी मैम, मतलब जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग 36 years old बच्चे भी हैं यहाँ पे। नॉट बच्चे, एक्चुअली दे आर लाइक दे आर 12 years एडल्ट्स elder to me। या तो उन वो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, टिल अब उनका जाके हुआ है। वही बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत टाइम लग जाता है लेकिन कहीं ना कुछ मतलब कमियां रह जाती हैं जिनकी वजह से नहीं सिलेक्शन हो पाता है तो हाँ हमें जी, बस उन वॉइड गैप्स को फिल करना और सिलेक्शन हो जाएगा जी जी। और मैम जो मेन कमी मैं मानता हूँ वो होती है कंसिस्टेंसी। ओके जो आपके में शायद कंसिस्टेंसी की कमी थी या फिर नहीं, नॉर्मली कमी बच्चों में होती है मैम कमी नहीं थी जो नॉर्मली बच्चों में होती है। ओके वो सो यू आर सेइंग कि यू आर मोर हाँ, मेरा कंसिस्टेंट जल्दी देन इसलिए हुआ कि आई एम कंसिस्टेंट, कि इट कोई कैन बी भी सीन कि इशू। आपने 10-12 घंटे पर डे पढ़ा है 11 महीने तक तो जी, मतलब बट अगर ये है कि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है, स्टिल यही है कि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो एक मॉक तो दे ही देना है, हम्म सो दैट कंसिस्टेंसी बनी रहे। ओके वो वाली चीज। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेंस पोर्शन अभी ओके। आपने प्रीलिम्स के लिए बताया कि आपको टाइम बेस्ड स्टडी करनी है मॉक्स बहुत जी सारे जी लगाने हैं और अपने जी। बेसिक्स पे काम करना है हाँ जी। लेकिन मेंस पे जब बात आती है तो थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पीड नहीं एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है मेंस के जी एग्जाम में जी जी। प्लस लेवल बहुत मतलब एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाता है लेवल में बिल्कुल बिल्कुल। प्रीलिम्स में बेसिक लेवल होता है और मेंस में जाके एकदम बढ़िया लेवल आ जाता है जी जी। तो उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी कोई स्ट्रैटेजी होती थी कि मॉक में इस तरह से प्रिपेयर करना है पर डे कितने मॉक्स लगाते थे बेसिकली किस तरह से प्रिपरेशन करें आपने मेंस की अब मेंस का जैसे मैंने प्रॉपर तो ये है कि मैराथन्स वगैरह लेना स्टार्ट करी थी ओके यूट्यूब से। और हम्म उसके अलावा मेरा ये था कि जो मैं मॉक देता था उससे कहीं ज्यादा टाइम मैं उसको एनालिसिस करने में लगाता था, कि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर उसको अपन अटेम्प्ट नहीं करें, ऑब्वियसली, कि जैसे आप देखते हो कि 200 मार्क्स का पेपर है तो अबाउट 80 से 85 कट ऑफ जाती है मेंस हम्म की। हम्म और अपन आईबीपीएस पीओ में जाए तो 225 मार्क्स में से 63 ही गई थी कट ऑफ, और मेरे थे हम्म 74 मार्क्स थे। तो ओके लाइक वो ज्यादा अपने को उस चीज पे ध्यान देना है कि किस क्वेश्चन में अपन नहीं फंस के रह सकते, टू बी मोर या प्रिसाइज। और बाकी जो मेन क्वेश्चंस है वो बन जाते हैं अगर आप बेसिक, वन फॉर मी वन मॉक इज मोर देन सफिशिएंट। पर डे बट वो है कि आप एनालिसिस उसको कितने अच्छे से कर रहे हैं, दैट इज ओके मोर इम्पोर्टेंट देन गिविंग मॉक। कितने टाइम पहले मॉक देना स्टार्ट करना चाहिए मेंस के एग्जाम से मैम जैसे मैं प्री का देता था तो प्री के टाइम पे मैं मेंस का सेक्शनल दिया करता था। ओके जैसे मेरी रीजनिंग अच्छी थी तो मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया कि थोड़ा मेरे मार्क्स अच्छे हो तो मेरे को कॉन्फिडेंस आए। और उसके अलावा जब प्रॉपर मॉक्स देने की बारी आती है तो आई से कि जैसे ही तुम्हारा प्री का एग्जाम खत्म हो उससे पहले तुम सेक्शन देते रहो, बट जैसे ही तुम्हारा प्री का एग्जाम खत्म हो, स्टार्ट गिविंग। ऐसे मत सोचो कि अभी भी मैं सेक्शनल देता हूँ या फिर मैराथन कर लेता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ, फिर उस चीज का कोई मतलब नहीं है। देन स्टार्टेड गिविंग मॉक्स, और उसको एनालिसिस करो। तुम्हारे बेस की जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने से उतने मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे जितना अच्छा एनालिसिस करने से होंगे। ओके तो आपने बोला एनालिसिस करो बेसिकली एनालिसिस करी कैसे जाती है बहुत सारे बच्चों को होता है कि मैम मॉक देने में तो टाइम लगता नहीं है और जी एनालिसिस करने में ना बहुत टाइम लग जाता है प्लस उसमें जी। थोड़ा सा आलस भी आता है तो हाँ मन नहीं जी। करता करने का जी जी जी। किस तरह से करनी चाहिए कि थोड़ा सा टाइम एफिशिएंसी रहे मैम पहले तो ये देखो कि मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो मेरे से बना क्यों नहीं।
हम्म। फिर उसको कंपेयर करो कि एक्चुअल में जैसे कई क्वेश्चन होते थे जो मैं देखता था कि 100 में से 1% बच्चे ने बनाया है, 1.5% बच्चे ने बनाया है। तो वो हम्म। एक्चुअल में अटेम्प्ट करने का होता ही नहीं था, वो जस्ट मैं हम्म। उसमें फंस के रह गया। तो पहली चीज हम्म। वो देखो, और फिर दूसरी चीज ये देखो कि इनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो मैं अटेम्प्ट कर सकता था। ओके। तो वो वाली चीज है। और बाकी जैसे होता है कि कोई किसी टॉपिक में आपका अपर हैंड है, हम्म। तो वो वाली चीज आप पहले ट्राई कर सकते हो। बट वही है कि स्टिल एक आपको बेसिक आइडिया लग जाता है। आपकी प्रिपरेशन इतनी ठीक होनी चाहिए, इतने आप क्वेश्चन गो थ्रू होने चाहिए कि आपको पढ़ के पता लग जाए कि हाँ, इफ आई टच दिस क्वेश्चन देन आई एम एबल टू सॉल्व इट। ओके, तो बेसिकली आपको क्वेश्चंस पहचानने आना चाहिए, इसलिए आप एनालाइज जी कर रहे हो अपने मॉक हाँ टेस्ट जी को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा सही में होता है कि हम एक क्वेश्चन को लेके बैठ गए और उसमें बहुत सारा टाइम ले लिए बहुत क्योंकि सारा हमें टाइम लग रहा है कि शायद अगले 30 सेकंड में बन जाएगा। बन जाएगा। और या। फिर ये है कि अपन ने इतना टाइम दे दिया तो अपन सोचते हैं कि उसमें अपन और टाइम दे दे कि क्या पता बन जाए। तो सही वहां अपन में। और टाइम और ये वेस्ट कर ट्रैप जाते हैं। बन के रह जाता है बस। जी जी। और एक्चुअल में वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो अटेम्प्ट करने का था। वही। जी। हाँ, ये चीज सही में बहुत होती है। अच्छा, अभी आप बताइए कि जीए की किस तरह से प्रिपरेशन करते थे आप? जी, मैम एक तो जो रेगुलर अपनी डेली करंट अफेयर्स होती है वो तो मस्ट है ही। आप डेली पढ़ते थे करंट अफेयर्स? हाँ जी, लाइक 1.5 आवर्स की क्लास होती थी तो वो मैं रेगुलर लेता ही था। ओके। और अदर देन दैट स्टैटिक वाला पार्ट है वो मैंने एक बार कंप्लीट कर लिया था, जिसमें नॉर्मल आरबीआई वगैरह इन सब की चीजें थी। तो उससे मेरा हो गया था। और जैसे ही एग्जाम पास में आता है तो मैराथॉन्स आप ले सकते हो। ओके, तो फिर सपोज मैंने बोला कि आपने स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया था, राइट? जी तो सपोज मैंने बोला कि आपने अप्रैल या जून से स्टार्ट किया, जी। सपोज। हाँ तो जी। आपने अप्रैल से स्टार्ट किया, आपने अप्रैल के पूरे मंथ के करे डेली करंट अफेयर्स, फिर आपने मई, अप्रैल, मई, जून, अभी जुलाई में आ गया है, तो आप क्या करोगे? पिछले 3 महीने का पूरा दोबारा पढ़ोगे, उसके नोट्स बनाते थे? ये मंथली नहीं रिवीजन किस तरह से करते थे? मैम, मंथली रिवीजन ऐसे होता था कि एक मैं उस टाइम पे फोकस रहता था कि 1.5 घंटा मेरे को अच्छे से सुनना है तो सुनना है। नॉट लाइक कि 2x पे करके मैंने वीडियो चला ली। और ओके। ठीक। और जैसे ये होता था कि मेन तो ये रखो कि जिस टाइम पे वो चल रही है ना उस टाइम पे ही तुम ले लो। क्योंकि अगर ओके। एक बार वो छूट गया ना तो फिर वो पाइल अप होता चला जाता है कि ठीक है हम्म। कोई नहीं, 2 दिन का एक साथ ले लेंगे, 3 दिन का एक साथ ले लेंगे। हम्म। तो वो वाली चीज मेन होती है। और उसके अलावा देर इज मंथली लाइक पीडीएफ ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो उससे मैं रिवाइज कर लेता था। ओके। और फिर उससे एक आइडिया लग भी जाता था कि हाँ मैं कितना रिटेन कर पा रहा हूँ, तो मैं काफी अच्छा रिटेन कर लेता था। ओके, जी तो इफ वी से कि अगर मतलब जैसे कि मॉक्स हैं आप, तो मॉक्स जी जरूरी नहीं कि हम सिर्फ एक कंपनी का यूज करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोर्सेज जी अपने बहुत सारे रखो, चाहे जी वो टीचर्स हो, चाहे वो मॉक्स हो, चाहे वो स्टडी जी। मटेरियल हो, बहुत सारे मतलब सोर्सेज हमारे हाँ पास जी हाँ होने जी हाँ चाहिए। जी। अभी मानते हो? जी मैम, मेरे पास में 3 to 4 थे। मॉक्स जी, अलग अलग और कंपनीज के। टीचर्स भी? टीचर्स आई यूज टू प्रेफर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आई यूज टू प्रेफर, नॉट फ्रॉम अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ओके, तो पहले सबसे मैंने ज्यादा अच्छा मॉक्स खास कहाँ के प्रेफर करते थे आप? मैम, मतलब लाइक someone will say कि आई एम गिविंग इंटरव्यू ऑन गाइडली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गाइडली, बट टू बी ऑनेस्ट गाइडली फॉर मॉक पर्सपेक्टिव एंड फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। थैंक यू। मतलब जी, मतलब आई यूज टू गिव, जैसे स्मार्ट कीटा का आई ऑल्सो यूज टू गिव, बट उसका लेवल थोड़ा हाई था। नॉट ओके। गाइडली का भी लेवल काफी अच्छा है कि व्हेन आई गॉट टू द एक्चुअल एग्जाम तो मेरे को काफी चीजें इजी लग रही थी। और ओके। बट स्मार्ट कीटा का अगर अपन चाहते हैं तो उनका लेवल बहुत ज्यादा है। और टेक्स्ट बुक का जाए तो बहुत कम है। बट इफ यू गो थ्रू गाइडली ना, देन यू आर प्रिपेयर्ड इनफ टू क्रैक द एग्जाम। तो अभी कितने परसेंटाइल आते थे यूजुअली मॉक्स में, कि एक रफ एक आइडिया लग जाए कि अच्छा इतने आ रहे हैं तो हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाए? मैम लाइक मेरे कोई आते तो ऐसे ही थे 95-96%। परसेंटाइल? जी दैट्स ग्रेट। हाँ। मतलब स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कि नया नया था तब इतना नहीं था, बट जैसे मैंने प्रॉपर एनालिसिस वगैरह करना स्टार्ट किया, एक जो एक्चुअल प्रिपरेशन के बाद में जब मैं देता था तो मेरे परसेंटाइल अच्छे आ जाते थे, 95। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रेडिट ऑफिसर। आपको इसके ओके। बारे में कैसे पता चला? क्योंकि आई गेस आपने ये अभी रिसेंटली ही कुछ ऐसा रिलीज हुआ है कि अभी अंडर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं।
हाँ मैम, ये एक्चुअली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ही पहली बार निकाला है, वरना इससे पहले भी क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट आती थी। बट हम्म। आपका एमबीए इन फाइनेंस हुआ हुआ होना चाहिए, देन यू आर ओके। ओनली एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। तो ओके। बट फिर जैसे आदित्य सर है, जिनका मैंने हम्म। इंटरव्यू कोर्स भी लिया था, तो उनका एक्चुअली उन्होंने एक वीडियो डाला था अबाउट दिस कि लाइक हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस कैन आल्सो गिव दिस एग्जाम एज वेल। तो देन आई गेट टू नो अबाउट ओके, दिस। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या होती है इसके लिए? मैम एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा होनी चाहिए, और हम्म। आपकी एज लाइक फॉर जनरल इट इज लेस देन 30 ईयर्स, और उसके अकॉर्डिंग ओबीसी 32 एंड ST SC और उनके लिए 36। ओके, तो मैं बेसिकली जो लोग पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो जी लोग जी इसका जी, भी हाँ वो एग्जाम दे दे सकते हैं? सकते, जी जी। या ओके। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, काम क्या होता है, या किधर इसकी पोस्टिंग होती है, कुछ बता सकते हैं जॉब के बारे में? मैम जैसे मैं आपको जनरली कंपेयर करके बताता हूँ, क्रेडिट ऑफिसर एक पीओ का, पीओ का ओके। काम होता है प्रॉपर ऑपरेशन बेस्ड, कि हाँ पीओ कैन बी अ क्रेडिट ऑफिसर, कि कोई ओके। लोन के लिए आ रहा है तो उसको क्रेडिट ऑफिसर वाला काम करना पड़ सकता है या करता भी है। हम्म। बट जो क्रेडिट ऑफिसर का रोल होता है वो यही होता है कि जैसे कोई लोन लेने आया तो उसका प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस करना, कि पूरा उसका वेरीफाई वगैरह करना कि हाँ दैट द पर्सन इज एलिजिबल टू गेट द लोन और नॉट। ओके। मतलब ये जो क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट है, ये नॉर्मल ब्रांचेस जो अपनी 1 to 1 ब्रांचेस बोलते हैं, जहाँ पे एक पीओ, एक क्लर्क और दो एक हेड कैशियर और एक टेलर होता है, वहां नहीं हम्म। होते हैं ये। स्केल 4 स्केल 5 ऑफिसर्स लेवल ब्रांचेस में होते हैं, जहाँ पे प्रॉपर अलग से एक लोन डिपार्टमेंट होता है, वहां पे क्रेडिट ऑफिसर की अलग से पोस्ट होती है। और उसके ओके, तो अलावा जी, नहीं नहीं, आप बताइए। जी मैम, उसके अलावा जो अपने रीजनल ऑफिसेज और जोनल ऑफिसेज होते हैं, उसके हम्म। अंदर भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जिसमें अबाउट 30 to 40 क्रेडिट ऑफिसर्स होते हैं। ओ, दैट्स ग्रेट। तो आपकी पूरी टीम होती है उधर, हाँ जी, जोनल और जो ऑफिसर? जी, और जैसे पहले ये इस बार तो इन्होंने फॉर ग्रेजुएट्स निकाला। अदर हम्म। देन दैट जो पहले क्रेडिट ऑफिसर बनता था पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, वो मोस्टली स्केल 2 होती है। ये पहली बार ओके। ऐसा हुआ है कि स्केल 1 के अंदर क्रेडिट ऑफिसर के लिए पोस्ट आई वाह। है। तो अभी जैसे आपने बताया कि जहाँ पे स्केल 4 स्केल 5 के ऑफिसर्स होते हैं उधर ही यूजुअली जी क्रेडिट जी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। जी जी। तो इसका मतलब है कि जो बहुत ही अच्छी सिटीज में और हाँ बहुत ही जी, बड़ी बड़ी ब्रांचेस है वहीं वही, पर आपका ट्रांसफर होगा, या फिर आप काम करोगे तो बढ़िया ऑफिस में ही काम करोगे? जी जी। कंपैरेटिवली जो पीओ के ट्रांसफर्स होते हैं कि उनको थोड़ी सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचेस मिल जाती है, तो उसके कंपैरिजन में इफ यू आर पर्टिकुलर अप्लाइड फॉर क्रेडिट ऑफिसर्स, तो आप चांसेस है 50% चांसेस है कि आप रीजनल ऑफिसेज या फिर जोनल ऑफिसेज में बैठो, तो वो तो ऑब्वियसली जो एकदम मेन पार्ट होता है स्किल सेट वहीं पे होते हैं। और अदर देन दैट जो ये इतनी बड़ी ब्रांचेस होती है, ये भी ऑलमोस्ट अर्बन एरियाज में होती है, अर्बन एरियाज और मेट्रो सिटीज के अंदर। तो वो वाली ओके, चीजें। तो बहुत लग्जूरियस लाइफ मिलेगी, क्योंकि इससे काफी सारे बेनिफिट्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं, हाँ राइट? जी, हाँ जी। तो आप बता सकते हैं क्या पर्क्स और बेनिफिट्स होते हैं एक क्रेडिट ऑफिसर के? मैम पक्ष तो ये है कि जैसे नॉर्मल पीओ होता है, उसके अलावा जो अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ, मतलब जो मेरे को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया PGDBF पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस का कोर्स करवा रहे हैं, तो ओके। उससे मिलता जुलता सिलेबस होता है जैप का। ओके। जो जैप तो पीओ बनने के बाद देते हैं, बट उससे पहले उसको डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस बोलते हैं, तो उसका पेपर आई कैन गिव और आराम से निकल भी जाता है। जैसे अभी नवंबर वाला जो चल रहा है जैप के पेपर, अभी रिसेंटली चल रहे हैं, आज डिटेल का पेपर था, तो ओके। ऑलमोस्ट जितने यहाँ पे 100 समथिंग बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। मैं मई वाला करूंगा, हर 6 मंथ्स में होता है, तो मैं ओके। मई वाला करूंगा। तो उन्होंने सबने ऑलमोस्ट सबने सारे पेपर निकाल लिए, किसी का रहा है तो एक आधा रहा है जो अगली बार निकाल लेगा, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है कोर्स। तो उससे अपना एक क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट बढ़ के मिलता है एक पीओ की सैलरी से। ओके, तो मतलब जो एक नॉर्मल पीओ अपना जी, टाइम निकालने के बाद, जॉब करने के बाद जेआईबी क्लियर करेगा, उसके बाद जो इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट मिलेगा वो मेरे को ज्वाइन करने के साथ ही मिल जाएगा। वाह, दैट्स ग्रेट। या, तो आपकी सैलरी एज जब ज्वाइन करोगे तो पीओ से ज्यादा होने वाली है? हाँ जी, ओके। तो अभी आपका ट्रेनिंग फेज चल रहा है, राइट? जी जी। तो क्या होता है ट्रेनिंग में? हम ट्रेनिंग में यही होता है कि जैसे एक नॉर्मल पीओ होता है, उसकी 21 डेज की ट्रेनिंग होती है। और हम्म। जैसे मेरे साथ जो मेरे बाकी दोस्त प्रिपेयर कर रहे थे, वो काफी सफर कर रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, और अदर देन ओके। दैट उनको सब चीजें पूछनी पड़ती है। हम्म। बट अब जैसे यहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग 9 मंथ्स की है। ओके। तो 9 मंथ्स के अंदर जैसे अभी चल रहा है फर्स्ट 3 3 सेमेस्टर, 3 3 मंथ्स के 3 सेमेस्टर्स हैं। तो फर्स्ट ओके। सेमेस्टर में हमें जो एक नॉर्मल पीओ का वर्क होता है, वो हमें सिखा रहे हैं कि कैश वॉल्ट वगैरह कैसे ऑपरेट करते हैं।
अदर देन कि आपको कभी आपकी करेंसी चेस्ट के अंदर आपको जाना पड़े, उसके ओके। अंदर वहां पे कैसे होता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर एक मॉडल ब्रांच बना के दी हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, जिसमें सारे ओके। डिपार्टमेंट से कैश वॉल्ट वगैरह बना के दे रखी है, काउंटर बना के दे रखा है, मैनेजर का अलग से रूम है, वैसे सब कुछ बना के दिया हुआ है। फिर वहां पे हम डेली टू डेली ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे रिसेंटली अभी लास्ट मंडे हमने क्लियरिंग हाउस का वहां पे ऑपरेशन किया था। वाओ। या तो तो ये सारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बहुत फन होती होगी। हम फन भी होती है, बट ये है कि काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज भी है, बिकॉज वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि अपन जस्ट जा रहे हैं तो दे डोंट ट्रीट यू लाइक स्टूडेंट्स, दे ट्रीट यू लाइक लर्नर्स। तो ओके। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वहाँ पे हंसी मजाक नहीं कर रहे हो, आप सीरियस हो। वो वाली ओके। चीज की लाइक वो आपको एक्चुअल में ऐसा माहौल देते हैं कि दैट यू आर एक्चुअली वर्किंग इन अ बैंक। या बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क इन अ बैंक। हाँ या। ओके, तो आप बताएंगे कि यहाँ से, जैसे कि हम बात करते हैं कि एक पीओ को अगर हम नॉर्मली बात करें तो उन्हें बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, या फोन अलाउंस हो गया, बिल वगैरह पे करने के लिए, या जी एचआरए जी मिलता है, एकोमोडेशन मिलती है, लीज जी वगैरह। जी। आपको भी मिलती है वो सारी चीजें? वो सब चीजें मिलती है मैम, ऑलमोस्ट सिमिलर स्केल, दोनों दोनों स्केल वन पोस्ट है। बट जो ओके। एड ऑन है एक की आपका सिर्फ क्रेडिट का पार्ट है, दैट यू हैव टू डील विद क्रेडिट ओनली। पीओस का ये होता है कि उनको केवाईसी के लिए भी जाना पड़ता है, सारी चीजें ऑथराइज वगैरह भी चेकर वाला जो चीज होती है वो सारी चीजें ऑथराइज भी करनी होती है। वो जो वॉल्ट वगैरह होती है वो भी मैनेज करना होता है। तो वो चीजें, बट क्रेडिट ऑफिसर का यही है कि दैट यू हैव टू डील विद क्रेडिट पार्ट ओनली, लाइक ओके। क्रेडिट अप्रेजल एंड रिकवरी पार्ट। ओके, तो इज देयर एनीथिंग कि अगर एनपीए ज्यादा हो रहे हैं जी तो जी। आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। मैं रिस्पॉन्सिबल तब होऊंगा कि ड्यूरिंग क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस अगर हम्म। मैंने कोई लापरवाही बरती कि ये चीज वहां पे थी, स्टिल यू आपने उसको अनदेखा कैसे कर दिया, ओके। then I'm only being responsible. Other than that, if everything is okay, still the loan get NPA, then it is not the responsibility of that officer who have appraised the loan process. यार, दैट्स Yeah. फेयर। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप अपना काम अच्छे से जानते हो तो then there is nothing like this. ओके, सो हाउ इज लाइफ गोइंग नाउ? मतलब क्या ऐसी चीजें हो रही हैं आपका? जब रिजल्ट आया था जी उस जी। टाइम पे क्या रिएक्शन था आपके फैमिली मेंबर्स का? मैम आई स्टिल रिमेम्बर, एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने प्लेस की जगह सर्च किया। जैसे मैंने नाम नहीं सर्च करके जो पीडीएफ आया था जिस सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का, तो मैंने सोचा जयपुर डाल के देखते हैं। तो ओके। उन्होंने पीडीएफ के अंदर वो वाला सेंटर डाला था जहाँ पे हमें डीवी के लिए जाना है, तो जयपुर वालों को दिल्ली के लिए जाना था। तो मैंने JAIP टाइप्ड, तो उसमें आया नो रिस्पॉन्स, लाइक नथिंग वाओ। आई वाज ओके। लाइक कि मेरा पेपर अच्छा हुआ, मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था, स्टिल कैसे नहीं हुआ। तो वो फ्लैशबैक्स आने लग गए थे, बट स्टिल मैंने एक बार देखा कि एक बार नाम डाल के देखता है। फिर हम्म। व्हेन आई पुट माय नेम एंड गॉट मतलब सीन माय नेम, तो पहले मैंने अपने वो पीडीएफ अपने दोस्त को भेजा उससे, और अपना एडमिट कार्ड भेजा। फिर उसने कंफर्म किया कि हाँ हो गया, हो जा खुश। तो फिर मैं सबसे पहले मम्मी को बताने गया, मम्मी हम्म। खाना बना रहे थे। हम्म। तो मैं उनको बताने गया तो मैंने बोला कि हाँ हो गया। तो फिर वो हम्म। बोली किस में हो गया, मैंने बोला वो जो क्रेडिट ऑफिसर वाला मैंने दिया था। तो अच्छा। उनको बताते बताते मेरे को ऑटोमेटिकली, जैसे मैं बहुत लाइक मैं अपने ऐसे बहुत जल्दी मेरे को आंसू आते नहीं है कि बहुत कम मेरे को रोना आता है। बट उस हम्म। टाइम पे मैं रो ऑलमोस्ट रो गया, मतलब ऑलमोस्ट क्या, मैं रो गया था काफी तेज। तो फिर उधर से मेरी दादी आई, मेरा हम्म। छोटा भाई आया, तो उन्होंने थोड़ा ऐसे करा। फिर मेरे पापा बाहर थे, तो अच्छा। मैंने पापा को कॉल किया। तो हम्म। पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा, और वैसे उनका फोन हमेशा ऑन रहता है, उस दिन स्विच ऑफ आ रहा, तो मेरे को लग रहा कि ये फोन क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा हम्म। खुश वही होते। तो फिर मैंने करके करके हमारे जो साथ उनके साथ में काम करते हैं उनको कॉल वगैरह करके, फिर बोले नहीं वो निकल गए, फिर वो आए। फिर तब तक मेरे सारे दोस्त मिठाई वगैरह लेके आ गए थे। तो अच्छा। फिर वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए, वो गाड़ी से बाहर निकले, उन्होंने मेरे को रोड पे ही गले लगा दिया। दैट्स फिर सो स्वीट। हाँ, फिर उसके बाद में मेरे दोस्त मिठाई वगैरह लेके आ रखे थे, तो मेरे पापा को बहुत ऐसे काफी हाई शुगर है, बट अच्छा। स्टिल उन्होंने उस दिन 5 मिल्क केक खाए। और फिर ओह। मैंने बोला कि ठीक है खुशी वाली चीज है तो थोड़ा रुक जाओ। पर वो बोलते हैं अरे आज तो कितने भी चलेंगे, आज कौन सी शुगर बढ़ेगी। आई स्टिल रिमेम्बर कि वो बहुत ज्यादा खुश थे। और अभी भी वो व्हेन पहले जब लोग पूजा करते थे तो वो बताते थे कि हाँ तैयारी कर रहा है ऐसे। मतलब मैं ही उनको मना कर देता था कि बैंक की तैयारी आप मत बोलो, क्योंकि बिकॉज आई एम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, तो सब ये बोलते थे कि उसने प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरा कॉलेज भी काफी अच्छा था। बट अच्छा। अब वो ये है कि फिर मैं उनको बोल देता था कि आप जस्ट बोल दो कि तैयारी कर रहा है।
बट अब वो काफी अच्छे से बताते हैं कि दैट ही इज क्रेडिट ऑफिसर। वाओ, तो दैट्स सो वो वाली थी। इंस्पायरिंग। जी क्योंकि यही तो सपना होता है सारे ही एस्पिरेंट्स का, कि जब सिलेक्शन होगा तो उस टाइम पे घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, जी जी। कैसी लाइफ होने वाली है बाद में। और आपको देख के बिल्कुल पता चल रहा है कि बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है, बहुत अच्छा रिएक्शन होता है। हाँ मैम, एक्चुअली क्या, मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल करा है, तो अब मैं चाहता हूँ कि दैट यू जस्ट सेट एंड एंजॉय योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और मेरे को काम करने दो। तो वो वाली चीज है। A proper dream come true. या Okay, so everything is good now. Now that you have एक्चुअली achieved a lot. इट इज Okay, एक जो so रात को सोने वाली चीज है कि हाँ चैन से सो सकते हैं कि हाँ वो। I can agree. ओके, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स के लिए जो इस टाइम पे अपनी जर्नी में है, अभी प्रिपरेशन में है, तो कुछ बोलना चाहेंगे उन्हें? मैम मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि एक तो जस्ट कंसिस्टेंट रहो, कि अगर कंसिस्टेंसी तुमने छोड़ दी तो तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, वो सब चीज बेकार है। एंड अदर देन दैट, ऐसे लोगों के बीच में रहो कि तुम्हारा कई बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट्स तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, बट हम्म, स्टिल आपका विल इतना स्ट्रांग होना चाहिए। बट आपका भी कई बार डगमगा जाता है, बट ऐसे लोगों के बीच में रहो जो हमेशा आपको प्रेस बोले कि नहीं, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। जैसे मेरे एक दोस्त हैं जो ऑलरेडी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पीओ है, तो उन्होंने उनका मेरे साथ में हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। और मेरा मन हुआ था कि नहीं अब नहीं करना, ये सब चीजें हैं, बट स्टिल ही इज द वन जो मेरे साथ में हमेशा रहे। एंड अदर देन माई पेरेंट्स, आई विल गिव क्रेडिट टू हिम because the place I'm here, for the place I'm here. yeah, you can take his name. Nishkarsh Goyal. Yeah, actually he has been here in the second episode of this Okay, series. okay. Yeah, so it was really nice talking to you, and I really hope that aspirants को यहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट सीखने के लिए मिले होंगे, Yeah, और बहुत मोटिवेटेड भी फील करें आपकी लाइफ स्टोरी जानने के बाद। okay. एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं। कब आने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जी और जी। अभी आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत इंस्पायर्ड फील हो रहा है इवन। थैंक यू Okay, सो thank you, मच फॉर ma'am. ज्वाइनिंग अस, एंड Thank इट you, वाज अ ma'am. प्लेजर टॉकिंग टू यू। Ma'am, one more thing I would like to add. Like, या I'm not that confident person. तो जो मेरा इंटरव्यू था वो इतना अच्छा हो पाया आदित्य सर की वजह से। बिकॉज लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, जब मतलब आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट पर्सन कि जाके मैं पैनल को फेस वगैरह कर पाऊँ। बट व्हेन आई टेक दैट कोर्स, और आदित्य सर ने जिस अकॉर्डिंग मेरा प्रिपरेशन करवाया इंटरव्यू का, जो मैंने उनका बैच लिया था, मैंने गाइडली का ही बैच लिया था इंटरव्यू का भी। तो ओके, एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू आई गॉट दैट फीलिंग कि आई विल बी सेलेक्टेड, क्योंकि बिकॉज फ्रॉम टू ऑफ द थ्री मेंबर्स दे सेड गुड, वेरी वाओ, गुड। One said good and one said very good. So from this interview, I would like to thank Aditya sir as well. I'm sure this message will be conveyed to Aditya sir, and Yeah, he'll be please really convey glad to this. know this. Okay. Yeah, sure. I can tell him personally also, but I Okay. hope it reaches through the video. Okay. Okay, thank you so much. Thank you, It ma'am. was really a pleasure talking to you. Thank you. And I Thank hope all the success and all your wish dreams comes true, and you do very, very well in your life. you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you.